गुड डे ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की एनालिटिक फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू में हम कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर देने वाले हैं। ए कर्व गामा ऑन ए अर्गान प्लेन इज ए कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस जेड टी ऑफ ए रियल वेरिएबल डिफाइंड ऑन एन ए रियल इंटरवल टी बिटवीन अल्फा टू बीटा वेयर अल्फा लेस देन बीटा. We call Z alpha and Z beta here, Z alpha and Z beta, the end points of gamma. Suppose this is a curve from alpha to beta. Z alpha being initial point, this is alpha initial point, and Z beta, this is the terminal point of gamma. Obviously the Z alpha और Z beta को हम मिला दें, जैसे कि इसने कहा है, if Z alpha is equal to Z beta, gamma is called a closed curve. And second, a curve gamma is called a Jordan arc or simple curve. Jordan curve or a simple curve. If there exists some parameters representation, z is equal to zt is equal to xt plus I by t. यहाँ पर t का मतलब है x जो है फंक्शन है t का और y फंक्शन है t का, where t between alpha to beta. Such that if t1 is not equal to t2 implies zt1 is not equal to zt2. That is zt is 1 1. Yeah, we say that if t1 is equal to t2 implies that t1 is equal to zt2, then zt is 1 1. A closed curve gamma is called simple if there exists a parameter trick representation z is equal to zt is equal to xt plus I by t, t between alpha to beta, such that t1 less than t2 and zt1 is equal to zt2 implies t1 is equal to alpha and t2 is equal to beta. We usually refer to such curves as simple closed Jordan curve. क्या बोलते हैं इसको हम? सिंपल कर्व को सिंपल क्लोज जॉर्डन कर्व. जॉर्डन कर्व हमने ऊपर डिफाइन करा था. नाउ वी डिफाइन फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. ये तुमने रियल में पढ़ा है, रियल फंक्शन की डेफिनेशन. सिमिलरली फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स. इफ ए रूल और सेट ऑफ रूल्स बी गिवन बाय means of which it is possible to find one or more complex numbers w for every value of z in a certain domain D. We say that w is a function of z defined on the domain D and write w is equal to fz is equal to u plus iv, where हम जानते हैं z is equal to x plus iv होता है और fz बराबर u plus iv है, जहाँ u और v दोनों फंक्शंस हैं टू वेरिएबल्स x एंड y के. इसका मतलब क्या हुआ? w is equal to u x y plus iv x y. जैसे कि रियल एनालिसिस में भी हमने पढ़ा है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस, तो यहाँ पर भी क्या है? W is said to be सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ z अकॉर्डिंग एज फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ z देयर करस्पॉन्डेंस 1. यदि 1 वैल्यू है केवल तो सिंगल वैल्यूड एंड मोर देन 1 है तो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस. लिमिट एंड कंटिन्यूटी ये तुमने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी रियल एनालिसिस में पढ़ी, बीएससी फर्स्ट ईयर में रियल डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ी है और बीएससी थर्ड में भी रियल एनालिसिस में भी पढ़ोगे तुम. ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी रियल एनालिसिस में पढ़ी है हमने, अब हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं. लेट w इज इक्वल टू एफ जेड बी एनी फंक्शन ऑफ जेड डिफाइंड इन ए बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन डी. We say that f z tends to the limit L as z tends to along any path in D. If to each positive arbitrary number epsilon, however small, there corresponds a positive number delta such that mod of fz minus L less than epsilon है, for all point of z belongs to D है, and for which mod of z minus A is greater than 0 and less than delta. और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? लिमिट z tends to a f z is equal to L. वहाँ पे हमने जो रियल में पढ़ा है z की जगह केवल x लिया है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है रियल में? लिमिट z tends to a f x is equal to L. इसी प्रकार से हमने बीएससी फर्स्ट में कंटिन्यूटी भी पढ़ी है रियल एनालिसिस में. अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं. क्या है डेफिनेशन? ए फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड डिफाइंड इन द बाउंडेड क्लोज डोमेन D इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट z इज इक्वल टू a ऑफ D if given any positive number epsilon we can find a positive number delta such that mod of fz minus fa less than epsilon for all points z belongs to D है, और for every mod of z minus alpha z minus a less than delta है and greater than equal to 0. और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? लिमिट z tends to a fz is equal to fa. रियल में जब हम पढ़ते हैं तो z की जगह केवल क्या आ जाता है? x आ जाता है. इसी प्रकार से कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ रियल एंड इमेजरी पार्ट्स ऑफ एफ जेड, ये क्या बोलता है कि एफ जेड बराबर था यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई. एफ जेड कंटिन्यूस फंक्शन है तो यू भी यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई दोनों कैसे होंगे? सेपरेटली कंटिन्यूस फंक्शन होंगे. इसका रिवर्स यदि हम करें
रिवर्स क्या बोल रहा है कन्वर्सली कि इफ़ यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस हैं तो एफ जेड भी क्या होगा हमारा कंटिन्यूस फंक्शंस। एंड इफ लिमिट एफ जेड इज इक्वल टू एल है तो लिमिट ऑफ एफ जेड कंजुगेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल कंजुगेट। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमने पढ़ा है रियलिज्म में, यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी हमने रियल में भी पढ़ा है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी, लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड बी द फंक्शन ऑफ जेड डिफाइंड इन ए डोमेन डी, देन एफ जेड इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट जेड बराबर ए इफ द इंक्रीमेंट रेशो, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट रेशो, क्या है डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ए बटे डेल्टा जेड टेंड्स टू ए यूनिक फाइनाइट लिमिट एज जेड टेंड्स टू ए। ये हमने रियल में पढ़ा है, वहाँ पे हमने पढ़ा है एफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ए बटे डेल्टा एक्स। यदि ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है यूनिकली टेंड्स टू ए यूनिक फाइनाइट लिमिट एज जेड टेंड्स टू ए, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है एफ डैश इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ए बटे डेल्टा जेड इफ द लिमिट एग्जिस्ट। इसको याद कर लें, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और है, वो डेफिनेशन है ये वाली, इक्वलेंटली एफ डैश इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू एफ जेड माइनस एफ ए बटे ए इफ वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस लिमिट एज जेड टेंड्स टू ए। यदि हमें दो ये यूनिक ना मिलकर दो वैल्यू मिले फ्रॉम डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ डी, दैट इज इफ द लिमिट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड डेल्टा जेड पर डिपेंड कर रही है तो हम इसको फंक्शन को कह देंगे नॉन डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू ए। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रियल में भी पढ़ी है तुमने, कि कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव। मतलब कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। कैसे? फॉर एफ ए प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ए निकालते हैं, कितना आएगा भाई डेल्टा जेड एफ ए प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ए बटे डेल्टा जेड, सोल्व करके निकाल सकते हो। वी ऑब्टेन लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस डेल्टा जेड माइनस का एफ ए बराबर कितना हो जाएगा जीरो इंटू एफ डैश ए बराबर कितना हो गया जीरो, और लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड माइनस एफ ए कितना आ गया जीरो, दैट इज लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड कितना आ गया एफ ए। इट फॉलोज दैट फंक्शन कैसा हो गया हमारा कंटिन्यूस, बट कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट नेसेसरी ट्रू। इसका एक एग्जांपल हम आगे पढ़ा देंगे इसको। इसके बाद मैं एक एग्जांपल और बताने जा रहा हूं तुम्हें कि सो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन। कैसे? वी हैव एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड, ये डेफिनेशन थी। लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड की जगह था जेड की पावर एन, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की जगह कितना हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड की पावर एन माइनस जेड की पावर एन बटे डेल्टा जेड। इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो जेड प्लस डेल्टा जेड की पावर एन क्या आएगा जेड की पावर एन प्लस जेड की पावर एन माइनस वन इंटू डेल्टा जेड इंटू एन सी वन प्लस एंड सो ऑन। उसमें से जेड की पावर एन पहला टर्म इससे कट जाएगा तो क्या बच रहा है हमारे पास एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एन जेड की पावर एन माइनस वन, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था पहला टर्म, प्लस डेल्टा जेड ओवर फैक्टोरियल टू एन इंटू एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें ये तो कट गया था। इसका जो सबसे लास्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा डेल की पावर एन माइनस वन इंटू जेड, और इसमें जब हम डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो रखेंगे तो ये डेल्टा जेड ये सब जीरो हो जाएंगे हमारे, तो केवल ये बच रहा है कितना आ जाएगा एन जेड की पावर एन माइनस वन। हैंस एफ डैश जेड एग्जिस्ट फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड। अब यहाँ पे कह रहा है जेड की फाइनाइट वैल्यू है तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा हमारा एग्जिस्ट। इसी थ्योरम को यदि हम अप्लाई करें तो इसका मतलब क्या है कि जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड सोन ये सब क्या हो गए हमारे डिफरेंशियल फंक्शन हो गए। इसका मतलब अगर ये सब डिफरेंशियल फंक्शन हो गए तो इनका जोड़ मीन्स एफ जेड इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस अप टू ए एन जेड एन, ये भी क्या हो गया हमारा इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड हो गया। मोर जनरली ए रेशनल फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन जेड बटे ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए एन जेड एन बटे बी जीरो प्लस बी वन जेड प्लस बी टू जेड स्क्वायर प्लस बी एन जेड की पावर एन, ये भी कैसा हो गया एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड हो गया थ्रू आउट एनी फाइनाइट डोमेन इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन वेयर दी डिनोमिनेटर डज नॉट वेनिशन। ये एग्जाम्पल 2 जो है ये मैं तुम्हें एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ, इसको आप खुद कर लीजिएगा, मैंने सॉफ्ट कॉपी भेज रखी है आपको। अगली वीडियो में एनालिटिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक्स।